محکمہ ایکسائز فیصل آباد کی پھرتیاں گزشتہ مالی سال کی نسبت 40% سے زائد ٹیکس وصولی رواں سال جولائی سے جنوری کے اختتام تک 4 ارب 65 کروڑ روپے ریکور کر لیے گئے۔ محکمہ ایکسائز کی ٹیکس وصولیاں گزشتہ مالی سال کے مقابلے 40% زائد ریکارڈ کی گئیں۔ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے اعداد و شمار کے مطابق رواں مالی سال کے ہدف کا 65% حاصل کر لیا گیا۔ جولائی سے جنوری کے اختتام تک 4 ارب 65 کروڑ روپے سے زائد ٹیکس وصول کیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ جائیدادوں پر عائد پراپرٹی ٹیکس کی مد میں 2 ارب 54 کروڑ روپے آمدن ہوئی۔ پروفیشنل ٹیکس وصولی 11 کروڑ روپے سے زائد رہی۔ ہمارے 2 طرح کے کورس سہولت لیے جا رہے ہیں۔ ایک اگر مالک موجود ہے تو اس کو وارنٹ ایشو ہوتے ہیں، اس کو ریسٹ کیا جاتا ہے تب تک اس کو چھوڑتے نہیں جب تک اس کی پیمنٹ نہیں ہو جاتی۔ سیکنڈ یہ پراپرٹی کو سیل کر دیتے ہیں، اور ابھی بھی پچھلے مہینے بھی ہم نے کافی پراپرٹی سیل کی ہیں۔ آج بھی ہم نے میٹنگ کی ہے اور ڈائریکشن یہ دی ہے جو بھی ڈیفالٹر ہیں پیمنٹ ابھی تک نہیں ان کی پراپرٹیز کو سیل کریں۔ شراب کی فروخت پر عائد ایکسائز ڈیوٹی سے 11 کروڑ 44 لاکھ روپے آمدنی ہوئی۔ ایکسائز حکام کے مطابق رواں مالی سال کے ہدف 30 جون سے قبل مکمل کر لیے جائیں گے۔ کیمرامین ایمان علی کے ساتھ عمیر اعظمت، سٹی 41 فیصل آباد۔ ضلع جنگ میں ریلوے نیٹ ورک 99 کلومیٹر پر محیط۔ شورکوٹ کینٹ کے سوا تمام ریلوے اسٹیشنز پر ویرانیوں کے ڈیرے وریام، رستم، سرگانہ، مدوکی، جنگ صدر، سٹی، ٹھٹھہ مالا، چون بھروانا اور شاہ جیونا کے سٹاپس پر سہولتیں ناپید۔ ضلع جنگ میں 99 کلومیٹر طویل ریلوے نیٹ ورک آہستہ آہستہ عوامی استعمال سے باہر ہونے لگا، جس کے باعث شہریوں کو سفری سہولیات میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شورکوٹ کینٹ کے علاوہ ضلع کے بیشتر ریلوے اسٹیشن ویرانی کا منظر پیش کرنے لگے۔ بریام، رستم، سرگانہ، مدوکی، جنگ سٹی، ٹھٹھہ مالا، چون بھروانا اور شاہ جیونا جیسے اہم اسٹیشن مسافروں کے لیے بنیادی سہولیات سے مکمل طور پر محروم ہو چکے۔ جنگ صدر ریلوے اسٹیشن پر بھی سہولیات محدود ہونے کے باعث مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا رہتا ہے۔ ہزارہ ایکسپریس کا سٹاپ صرف جنگ صدر تک ہی محدود رکھا گیا ہے، جبکہ دیگر اسٹیشنوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ عوام کا کہنا تھا کہ اربوں روپے مالیت کا قیمتی ریلوے انفراسٹرکچر حکومتی عدم توجہی کے باعث بیکار پڑا ہے۔ جھنگ کا قدیم ایک ریلوے اسٹیشن ہے، اور جو ریلوے ہے وہ مسافروں کے لیے ایک سستا سورس ہے سفر کے لیے، لیکن یہاں پہ ایک ٹرین چلتی ہے ہزارہ ایکسپریس۔ اس سے پہلے ایک ساندل ایکسپریس چلتی تھی، وہ ہر اسٹیشن پہ رکتی تھی، لوکل تھی، تو کووڈ کے بعد وہ بھی چلنا بند ہو گئی۔ ہزارہ ایکسپریس کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے، لیکن وہ آتی رات کے ٹائم ہے، اور یہاں سے یہ تقریباً 90 کلومیٹر کا طویل جو ہے نا جی پٹڑی ہے، یہ سفر بنتا ہے جو بہت مشکلات ہیں یہاں پہ عوام کو۔ ایک ٹرین ہے وہ بھی رات کو آتی ہے ہزارہ ایکسپریس، اس کا بھی کوئی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کوئی نہیں، بلی وارث پنجابی میں کہتے ہیں، اور باقی دن کو یہاں پہ سارے ٹک ٹاکروں کا راج ہوتا ہے، اور کوئی نہیں حالت یہاں پہ، سواریاں بہت پریشان ہوتی ہیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ بند پڑے ریلوے اسٹیشنز کو فعال اور ٹرینوں کے سٹاپ بحال کیے جائیں، مسافروں کو بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں تاکہ عوام اس قومی اثاثے سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جنگ۔ فارمنگ بیوروکریسی مبینہ طور پر سیل ماڈل ختم کرنے پر تل گئے، لیز ماڈل پر پلاٹ دینے کی حکمت عملی تشکیل دینے لگی۔ فیڈرک میں پلاٹ 3 کروڑ روپے فی ایکڑ کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ سیل ماڈل ختم ہونے پر فیڈرک میں اربوں کی سرمایہ کاری داؤ پر لگنے کا خدشہ ہے۔ سرمایہ کاری بڑھانے کے نعرے کو بریک لگنے کا خدشہ۔ فیڈمک بیوروکریسی لیز ماڈل پر پلاٹ دینے کی حکمت عملی تشکیل دینے لگی۔ لیز ماڈل نہیں تو فی ایکڑ 3 کروڑ روپے کرنے کی تجویز بھی زیر غور۔ فی الوقت فیڈمک میں فی ایکڑ 1 کروڑ 4 لاکھ روپے ہے۔ سیل ماڈل ختم ہونے پر فیڈمک میں اربوں روپے کی سرمایہ کاری داؤ پر لگنے کے مترادف ہے۔ صدر چیمبر آف کامرس فاروق یوسف شیخ کہتے ہیں انڈسٹری پہلے سے مشکلات کا شکار ہے، لیز ماڈل یا قیمتوں میں 3 گنا اضافہ بہت نقصان دہ ثابت ہوگا۔ آلریڈی انڈسٹری کرائسس کا شکار ہے، اور اگر ہم اس کو سیل سے لیز پہ لے جائیں گے تو یہ بھی بالکل غیر مناسب ہوگا۔ آئی تھنک سو ڈویبل نہیں ہے، اور اگر ہم اس کی پرائسز کو 3 گنا لے جانے کا سوچ رہے ہیں تو یہ بھی بالکل غیر مناسب ہوگا، اور آئی تھنک سو یہ بھی ڈویبل نہیں ہے، ورکیبل نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے پہلے ریٹس چل رہے ہیں آئی تھنک سو وہ ٹھیک ہیں، اور اس کو لیز پہ بھی بالکل لے کے نہیں جانا چاہیے۔ اقتصادی ماہرین کے مطابق فیڈمک میں مضبوط سرمایہ کاری سیل ماڈل سے ہی ممکن ہے۔ کیمرامین عقیل نقاش کے ہمراہ محمد علی نارو، سٹی 41 فیصل آباد۔ درآمدات کی کسٹم کلیئرنس فیسلیس اسسمنٹ کے خلاف درخواستیں دینے کی اجازت فراہم۔ اعتراضات پر مبنی درخواستیں آن لائن ہی جمع کرائی جا سکیں گی۔ درآمد کنندگان کے لیے اچھی خبر، درآمدات کی کسٹمز کلیئرنس کی آن لائن سسٹم فیس لیس اسسمنٹ کے خلاف نظر ثانی درخواستیں دائر کرنے کی اجازت مل گئی۔ اعتراضات پر مبنی درخواستیں آن لائن ہی جمع کروائی جا سکیں گی۔ کسٹمز کو کسی افسر کے روبرو پیش ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بلال گنج آٹو پارٹس مارکیٹ کے چیئرمین حاجی فیاض کا کہنا تھا کہ حکومت کا بہت اچھا اقدام ہے، اس سے کنٹینرز کی کلیئرنس پر جو اعتراضات ہوں گے گھر بیٹھے ان پر اپیل کی جا سکے گی، جس سے دفتر کے چکر نہیں کاٹنا پڑیں گے۔ یہ گورنمنٹ
गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इकदाम है। पहले यहाँ चक्कर लगा लगा के कस्टम के दफातर के और अदालतों के जब थक जाते थे तो पता चलता था अब अपील लाहौर में जाके दायर करनी पड़ेगी, फिर लाहौर के चक्कर लगने शुरू हो जाते थे, तो उतना का माल नहीं होता था जितने चक्कर लग जाते थे हमारे। तो ये एक बहुत अच्छा इकदाम है, इंशाल्लाह हम मुतमिन हैं। दरखास्तों की समाअत भी ऑनलाइन ही होगी। कस्टम्स हुकाम ने कस्टम्स क्लीयरेंस के मामलात में शफाफियत लाने के लिए फीसलेस असेसमेंट सिस्टम मुतारिफ करवा रखा है। कैमरामैन मलिक इरफान के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। हॉर्टिकल्चर एजेंसी झंग का कयाम, वसाइल की मुंतकली 15 फरवरी तक मुकम्मल करने का फैसला। एमडी हॉर्टिकल्चर एजेंसी और डिप्टी कमिश्नर अकबर भिंडर ने जिला कौंसिल हॉर्टिकल्चर विंग के वसाइल भी मांग लिए। हॉर्टिकल्चर एजेंसी झंग के कयाम के लिए वसाइल की मुंतकली का अमल 15 फरवरी तक मुकम्मल करने का फैसला। इस हवाले से एमडी हॉर्टिकल्चर एजेंसी और डिप्टी कमिश्नर झंग अली अकबर भिंडर ने जिला कौंसिल से वसाइल फराहम करने का मुतालबा किया है, जिसके तहत जिला कौंसिल के पार्क्स और हॉर्टिकल्चर विंग के तमाम वसाइल हॉर्टिकल्चर एजेंसी को मुंतकिल किए जाएंगे। इकदाम पर शहरी हलकों की जानिब से खुशी का इजहार। बहुत अच्छा पंजाब हुकूमत का इकदाम है और इससे ये होगा कि मजीद पार्कों में बेहतरी आएगी, सफाई अच्छी होगी, लोगों को तफरीह का मौका मिलेगा। नवा महकमा बन रहा सर, अच्छी गल है, पार्कों की सफाई भी होगी, फुल खिलणगे, ग्रीन बेल्ट बनेगा, आवाम वास्ते बड़ा अच्छा काम हो रहा है। उधर सेक्रेटरी ट्रांजिशन कमेटी ने म्यूनिसिपल कमेटी के स्टाफ की फिजिकल फिटनेस चेक करने का अमल शुरू कर दिया, जबकि जिला कौंसिल की जानिब से स्टाफ की निशानदही के बाद मुतलका मुलाजमीन की फिजिकल फिटनेस जांची जा रही है। हॉर्टिकल्चर एजेंसी झंग के अंडर जो है वो हम लेके आ रहे हैं और उनसे जो है वो हम मशीनरी और दीगर जो चीज़ें हैं वो आ जाएंगी और उसके बाद इसी तरह फिर सेकंड फेज में जो एडवर्टीजमेंट के मामलात हैं वो लेके आएंगे और इंशाल्लाह जो ये इदारा जब इस्टेब्लिश हो जाएगा झंग के अंदर तो आपको एक बहुत ही खुशगवार जो है वो तब्दीली भी नजर आएगी, डेवलपमेंट भी नजर आएगी। हॉर्टिकल्चर एजेंसी झंग के कयाम को मौसर बनाने के लिए हॉर्टिकल्चर एजेंसी फैसलाबाद से भी मुआवनत हासिल की जा रही है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। झंग के स्कूल्स में तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल होंगे। पंजाब हुकूमत ने 1 अरब 96 करोड़ की ग्रांट दे दी। सलामत आसरा 142 स्कूल्स की बहाली भी की जाएगी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन अकीला इंतखाब के मुताबिक स्कूल्स में बाउंड्री वॉल्स की तामीर और दीगर तरक्याती काम मुकम्मल किए जा रहे हैं। बड़े तरक्याती मंसूबे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत मुकम्मल किए जा रहे हैं। इक़दामात का मकसद बच्चों को महफूज और मयारी तालीम का माहौल फ्राहम करना है। असातिज़ा की हार्डशिप कैटेगरीज में तबादलों का मामला 1691 असातिज़ा की हार्डशिप तबादलों की दरखास्तें मुस्तरद। महकमा तालीम ने 2263 दरखास्तों में से सिर्फ 572 दरखास्तों को कबूल किया। कमिश्नर राजा जहांगीर की सदारत में हतमी फैसला किया जाएगा। रेड रेसल कमेटी में डिवीजनल डायरेक्टर अली अहमद सयान, प्रिंसिपल अलाइड अस्पताल, डायरेक्टर मॉनिटरिंग ऑफिसर और 4 सीनियर स्कूल सरबराहान शामिल होंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि उमर अयूब और शिबली फराज को एक बार फिर तौहीन अदालत का नोटिस। फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने नोटिस जारी किया। इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 27 फरवरी के लिए नोटिस जारी किया। उमर अयूब और शिबली फराज के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट करने का इल्जाम है। लाहौर हाई कोर्ट के स्टाफ से बदतमीजी का मामला, अदालत ने एसएचओ की मुअत्तली गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। डीपीओ झंग की पेश करदा रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। जस्टिस तनवीर अहमद शेख ने शहरी सईद अहमद की दरख्वास्त पर समाअत की। डीपीओ झंग बिलाल इफ्तिखार कियानी अदालत में पेश हुए। डीपीओ झंग ने अदालत को बताया कि हाई कोर्ट स्टाफ से बदतमीजी करने वाले एसएचओ को मुअत्तल करके महकमाना इंक्वायरी शुरू कर दी गई। जस्टिस तनवीर अहमद शेख ने इस्तफसार किया कि आपने एसएचओ को किस बुनियाद पर तैनात किया। डीपीओ ने जवाब दिया कि मज़कूरा अफसर तजुर्बाकार है। अदालत ने सवाल किया कि इसकी तालीमी काबिलियत क्या है, जिस पर डीपीओ ने बताया कि एसएचओ की बुनियादी तालीम FA है। अदालत ने 15 रोज में कार्रवाई की तफसीली पेशरफ्त रिपोर्ट मांग ली। अदालत ने सख्त रिमार्क्स देते हुए कहा कि अगर इस मामले में दुरुस्त और मौसर कार्रवाई ना की गई तो आईजी पंजाब को तलब किया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि सूबे में एसएचओज की तैनाती का मयार क्या है। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। फैसलाबाद समेत सूबा भर के 24 DSPs के तकर्रुर तबादले। आईजी पंजाब राव अब्दुल करीम ने तबादलों का नोटिफिकेशन जारी किया। शोरकोट से मोहम्मद अकरम SDPO, नूरपुर थल खुशाब तैनात, रहीम झारखंड से खालिद महमूद DSP सदर, टोबा टेक सिंह तैनात। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम फैसलाबाद से मोहम्मद इफ्तिखार SDPO सांगला तैनात। सांगला से एजाज अहमद DSP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट फैसलाबाद तैनात। शाहिद परवेज वट्टू को DSP लीगल शेन्योर तैनात कर दिया गया।
हर सेक्टर में सरकारी और निजी शोबा की शराकत दारी से मंसूबों के आगाज का फैसला। कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर को बतौर कमेटी सरबराह 50 करोड़ रुपए तक के मंसूबे पर अमल दरामद की मंजूरी का इख्तियार मिल गया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वर्किंग पार्टी के इजलास में कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर का कहना था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के शफाफ मॉडल से डिवीजन और अवाम दोनों तरक्की की शाहराह पर तेजी से आगे बढ़ेंगे। निजी शोबे के ताउन से काबिले अमल मंसूबों की निशानदेही होनी चाहिए। कमिश्नर बतौर कमेटी सरबराह 50 करोड़ रुपए तक के मंसूबे पर अमल दरामद की मंजूरी देंगे। आज हमने जो मीटिंग की इसमें हमने कुछ प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स को हम फाइनलाइज किया है। इसके अलावा चारों हमारे डिस्ट्रिक्ट में झंग, चनियोट, टोबा और फैसलाबाद में, खास तौर पे फैसलाबाद में हमारे 2 से 3 प्रोजेक्ट्स हैं जो बड़े इंशाल्लाह अगले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर फाइनलाइज हो जाएंगे। उसमें तीनों के तीनों ऐसे हैं जो सरकारी सतह से निशान ना हो पाते जब तक प्राइवेट सेक्टर उसमें ना आता, और अल्टीमेट बेनिफिशियरी इसमें आम आदमी है, उसकी सहूलतों में इजाफा होगा। राजा जहांगीर अनवर का मजीद कहना था कि प्राइवेट सेक्टर की इकोनॉमिक जोन, अस्पताल, पार्क, सड़कों और सीवरेज सिस्टम के मंसूबों में शराकत दारी के लिए हौसला अफजाई करें। डिवीजन में इब्तदाई तौर पर FDA सिटी में इको फॉरेस्ट, शोरकोट में सनतजार, झंग में ओल्ड एज होम, स्लॉटर हाउस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने का इंदिया दिया गया। इस दफा एक नया कानून पास किया है हुकूमत ने। इन्होंने कमिश्नर की सतह पे भी 50 करोड़ की मालियत के जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट्स हैं उनकी मंजूरी दे दी हुई है कि अब हम ये अपने लेवल पे कर सकते हैं। अब देखें इसमें 3 डिफरेंट इसके शेड्स हैं। एक तो ये है कि प्राइवेट सेक्टर जो है उसके पास सरमाया है, उसके पास एक रिस्क लेने की उसके पास एक फैसिलिटी है। हम जो सरकार में हमारे पास स्टेट लैंड मौजूद है, हमारे पास अपनी कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, तो अगर इन दोनों को इकट्ठा करें तो ये आम आदमी के लिए बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन सकती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है और फैसिलिटीज में इजाफा हो सकता है। फैसलाबाद में फूड स्ट्रीट, पार्किंग प्लाजे, व्हीकल इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम विक्स सेंटर के क्याम के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबादियों की सेफ्टी यकीनी बनाई जाने लगी। CPO साहबजादा बिलाल उमर ने शहरियों को बाइक्स पर सेफ्टी वायर्स लगाने की हिदायत कर दी। CPO का कहना था हेलमेट की तरह सेफ्टी वायर्स भी नागुज़ेर हैं। फैसलाबाद में पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी है। शहरी एहतियात के तौर पर बाइक पर सेफ्टी वायर लाजमी लगाएं। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद नासिर जवेद राना भी मौजूद थे। बोले सेफ्टी वायर डोर से बचाव की ज़ामिन है। फैसलाबाद में मंकी पॉक्स के हमले जारी। अलाइड अस्पताल 1 में जेर इलाज 2 मरीजों में मंकी पॉक्स की तस्दीक हो गई। मजीद एक मुश्तबा मरीज भी अस्पताल पहुंच गया। अलाइड अस्पताल 1 में जेर इलाज 2 मरीजों में मर्द और खातून शामिल, जिसमें मर्द बहावल नगर जबकि खातून झंग रोड की रिहायशी है। इसके अलावा अलाइड अस्पताल 1 में मजीद एक नया मुश्तबा मरीज भी रिपोर्ट हुआ। मुतासरा मरीज सत्याना रोड का रिहायशी है, जिसके सैंपल भिजवाए जा रहे हैं। ताहम अब तक अलाइड अस्पताल 1 में मंकी पॉक्स के 13 मुस्बत मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। मुस्बत मरीजों के घर और इलाके में मंकी पॉक्स के फैलाव को रोकने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का दिल के मरीजों के लिए बड़ा इकदाम। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए एंजियोग्राफी मशीन और गैमा कैमरा की फराहमी की मंजूरी दे दी गई, जिसमें उन्होंने दिल के मरीजों के लिए अच्छी खबर सुनाई है। ऐसा कहना है कि डॉक्टर राना नदीम MMSFIC का कि 2 एंजियोग्राफी मशीनें मांगी थी मगर अभी 1 की मंजूरी हुई है। हमारे पास 4 एंजियोग्राफी मशीनें पहले से मौजूद हैं। नई एंजियोग्राफी मशीन की फराहमी से 5 एंजियोग्राफी मशीनें हो जाएंगी। उम्मीद है दूसरी नई एंजियोग्राफी मशीन भी मंजूरी मिल जाएगी। इसके अलावा दिल के मरीजों के थीलियम स्किन की मशीन गैमा कैमरा पुरानी हो चुकी है और गैमा कैमरा की नई मशीन की भी मंजूरी मिल गई है।